Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Now we have discussed about the thermodynamics. So let's start. The first one is entropy. Entropy are basically define the chemical changes predictions. So it means that the entropy is a thermodynamic state quantity that is measure the randomness or disorderness of molecules of the system. The symbol of entropy, which is represented by the S, and the change in entropy of the system is represented by the delta S. The entropy of a system is a state function and depends on the initial and the final state of the system. The change in entropy delta S are basically depend for the entropy of the final state of a system minus S is the initial state of a system. So it means that the entropy of final state is always greater than the initial state of a system. So the delta S, the change in entropy is positive. A process accompanied by increase in entropy tends to be a spontaneous process. So we have considered about the two state of a function is a highly ordered and the low entropy. First one is a highly ordered low entropy. Comparatively, the second one is highly disorder and high entropy of a system. Comparatively, this one is disorder is created. So it means that is more probable. So we have discussed about in a state of all the molecules, comparatively A state of all the molecules are arranged in highly order, comparatively B state of a functions, which is randomness and disorderness of a systems. So it means state A is highly ordered, low entropy, and the less probable comparatively the B state of a function is disordered and high entropy and more probable of a function. Entropy, we have discussing about the chemical changes prediction. So it means that the relationship between the entropy change and the heat absorb of a system. Delta S is equal to Q over T. It means the heat over the temperature. The unit is joules per Kelvin. डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच ओवर डेल्टा टी. सो द सिस्टम आपके पास क्या बता रहा है कि एंट्रोपी को हमने थर्मोडायनामिकल फंक्शन यानी इंथैल्पी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. For reversible process, net entropy change is given by delta S is greater than the zero, so the reaction is spontaneous. Comparatively, the delta S is equal to zero, reaction is equilibrium. Delta S is less than zero, so the reaction is not possible. So the reaction which is called as impossible of reactions. The Gibbs free energy changes. ये भी एक टर्म है आपके पास थर्मोडायनामिक के फंक्शन की. गिब्स फ्री एनर्जी आप बेसिकली बताता है कि फिजिबिलिटी ऑफ अ फंक्शन यानी थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है. ये हमें ये बताता है कि रिएक्शन कितना पॉसिबल होगा, रिएक्शन होगा या रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन प्रोसीड किया जाएगा सिस्टम के अंदर या नहीं होगा. this state property are basically tells about the feasibility of a process, यानी reaction is possible or reaction is not possible. Delta G is equal to delta H means that the enthalpy minus temperature and the change in entropy. डेल्टा एस ही हमने सिस्टम की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, यानी चेंज इन एंट्रोपी is greater than the zero, so the reaction is a spontaneous reaction. Comparatively, the Gibbs free energy is less than zero. Reaction क्या होगा, spontaneously कहलाएगा, यानी reaction possible हो रहा है. Comparatively, the change in entropy is equal to zero, so the reaction is equilibrium. और यही reaction हम इसको define करेंगे change in enthalpy of a system में. यही reaction आपके पास क्या कहलाएगा, equilibrium का reaction. Change in entropy is less than zero, so the reaction is impossible. Comparatively, अगर greater than होगा system में, so the reaction is possible. अब हम इसी के रिएक्शन को डिस्कस करते हैं. यहाँ पे हम प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं. द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन मींस C6H6 as 80.1 degrees Celsius and the molar enthalpy of vaporization of benzene at temperature is 30.8 kilojoules per moles. दो रिएक्शंस को हमने कैलकुलेट करना है एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ बेंजीन को, और सेकंड कैलकुलेट करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ वेपोराइजेशन जो कितने पे काम कर रहा है, 60 डिग्री सेल्सियस पे काम कर रहा है, जिसका प्रेशर हमारे पास 1 atm दिया हुआ है. जबकि बेंजीन जो बॉयल होगा स्पॉन्टेनियसली एट दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्या स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे. टेम्परेचर आपके पास गिवन है विच इज चेंज इनटू द केल्विन. डेल्टा एच यानी चेंज इन एंथैल्पी आपके पास किलो जूल्स में दिया हुआ था, चेंज इनटू जूल्स. तो फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा एस का इज इक्वल टू डेल्टा एच ओवर टी. तो फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंगली आपके पास चेंज इन एंट्रोपी फॉर्मूला हमने यहाँ पे पुट किया, उसके अकॉर्डिंगली हम वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर वुड बी 87.2 जूल्स केल्विन इनवर्स. ठीक है. अब यहाँ पे हमने चेंज इन एंट्रोपी फाइंड आउट कर लिया. फाइंड आउट हमें क्या करना है, हमें गिब्स फ्री एनर्जी को फाइंड आउट करना है. एंट्रोपी हमने फाइंड आउट कर लिया, एंथैल्पी की वैल्यूज हमें ऑलरेडी पता है, तो इसके अकॉर्डिंगली हमने सेकंड टेम्परेचर को यानी सेकंड रिएक्शन को फॉलो करते हुए जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा. टेम्परेचर क्या दिया हुआ है आपके पास पार्ट बी में आपके पास दिया हुआ है 60 डिग्री सेल्सियस.
चेंज करेंगे केल्विन में, फॉर्मूला लगाएंगे गिव्स फ्री एनर्जी का, वैल्यूज को पुट करना है, टेम्परेचर को आपने केल्विन में चेंज करना है, डेल्टा जी की वैल्यू निकालेंगे, आंसर वुड बी द पॉजिटिव, जूल से किलो जूल्स में गया। सो द डेल्टा एस आपके पास डेल्टा जी जो दिया हुआ है इज इम्पॉसिबल, कंपैरेटिवली डेल्टा एस आपके पास जूल्स पर केल्विन में आपके किलो जूल्स में आ गया आंसर, इम्पॉसिबल। Boiling point of benzene at 60 degrees Celsius is not a spontaneous reactions, means that the positive of reactions. So this one is the part A reactions, comparatively this one is the part B reaction. डिस्कस करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, हम ऑलरेडी फर्स्ट लॉ को डिस्कस किया, अब हम सेकंड लॉ को डिस्कस करते हैं। Statement of the second law of thermodynamics: whenever spontaneous process take place, it is accompanied by increase in the total energy of the universe. Spontaneous process होगा जो इंक्रीज करेगा टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स में। फॉर्मुलेशन क्या होगा, डेल्टा एस यानी चेंज इन एंट्रोपी इज ऑल ओवर द यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम में चेंजेस यानी चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑल ओवर द सराउंडिंग। So it means that this second law are basically defined कर रहा है irreversible spontaneous process and the entropy of the system and the surrounding is increased. So the relationship according to delta S यानी change in entropy of the universe is always greater than the zero. When reversible process, जब हम इसका reversible process करेंगे तो आपके पास change in entropy in universe is equal to zero. So the reactions both are the different reactions. हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि द एंटायर यूनिवर्स इज अंडरगोइंग स्पॉन्टेनियस चेंजेस, ठीक, अंडरगोइंग स्पॉन्टेनियसली चेंजेस होते हैं जो अकॉर्डिंगली ये डिफाइन कर रहा है कि द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीज। सिस्टम को डिफाइन करते हैं तो सिस्टम के अकॉर्डिंगली आपके पास सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट ऑफ फंक्शंस होते हैं, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड से आपके पास कंपैरेटिवली जब हम फिनोमेना डिस्कस करेंगे एंट्रोपी ऑफ सिस्टम को, तो दिस वन इज द लेस डिसऑर्डर एंड द लो एंट्रोपी व्हिच इज चेंज इनटू द गैसेस स्टेट एंड चेंज इनटू मोर डिसऑर्डर एंड द हाई एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। मॉलिक्यूल्स सेपरेट आउट हुआ है यानी चेंज ऑफ आइस वेपर्स टू अ लिक्विड एंड देन वाटर वेपर्स इज accompanied by increase of entropy with increasing disorder. डिसऑर्डर ज्यादा क्रिएट होगा, ज्यादा जगह को ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो आपके पास हाईली एंट्रोपी क्रिएट हो रही है सिस्टम में। यूजफुल डेफिनेशंस देखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेट करते हुए ही कि साइक्लिक प्रोसेस बेसिकली क्या होता है। साइक्लिक प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। साइक्लिक प्रोसेस आर बेसिकली डिफाइन कर रहा है कि व्हेन अ सिस्टम इज अंडरगो अ सीरीज ऑफ चेंजेस एंड इट इज रिटर्न इनटू द ओरिजिनल स्टेट, जो अपनी ओरिजिनल स्टेट पर आ जाएगा, is said to have complete a cycle. The whole process are comprising the various changes. This term is such cyclic process. साइक्लिक प्रोसेस आर बेसिकली क्या है, जो दोबारा अपनी इनिशियल स्टेट को हासिल कर ले, यानी दोबारा क्या आ रहा है, अपनी इनिशियल स्टेट पर आ रहा है, तो वो सिस्टम आपके पास क्या कहलाएगा, साइक्लिक स्टेट का सिस्टम कहलाएगा। अब यहाँ पे डेल्टा ई इज इक्वल टू जीरो मीन्स इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू या क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है। Internal energy of the systems are basically depends upon the initial state. It is stands to the reason of the cyclic process and the net change of energy is zero. इसको इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है कि जो दोबारा अपने इनिशियल स्टेट पे आ रहा है, इनिशियल टू फाइनल स्टेट पे, और चेंजेस को ऑब्जर्व नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो फंक्शन आपके पास क्या कहला रहा है, साइक्लिक प्रोसेस कहला रहा है। वर्क डन प्रोड्यूस हो रहा है बाय द सिस्टम ड्यूरिंग ऑल दिस चेंजेस शुड बी इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है सिस्टम के अंदर से, क्योंकि ये रिलेशनशिप किसके साथ कर रहा है, हीट के साथ कर रहा है, एनर्जी का रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू द हीट एंड द वर्क डन प्रोसेस। हीट इंजन, हीट इंजन बेसिकली क्या है आपके पास, हीट इंजन बता रहा है कि द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर टू अ कोल्डर बॉडी। अब आपके पास हीट कहाँ जा रही है, हॉटर टू अ कोल्डर बॉडी के सिस्टम के अंदर से। द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, वो सिस्टम आपके पास क्या कहलाएगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाएगा, यानी हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी के अंदर जा रहा है, वो सिस्टम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाएगा, यानी कंटिन्यूसली चल रहा है। द हीट इज फ्लो आउट स्पॉन्टेनियसली कैन बी यूज्ड फ्रॉम वर्क विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डिवाइसेस। हम डिवाइस के जरिए ही फंक्शन करेंगे, क्योंकि अगर हीट चेंज हो रही है हॉटर टू द कोल्डर बॉडी, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो जरूरी है कि वो कोई ना कोई फंक्शन प्रोड्यूस करे, यानी डिवाइस के जरिए काम हो रहा है। अब मशीन कैन डू वर्क, कोई भी मशीन जो वर्क परफॉर्म करी है यूजिंग हीट that flow out the spontaneous from a high temperature sources to a low temperature sink, यानी high temperature source system कहलाएगा and the low temperature as a sink system कहलाएगा। वो रिएक्शन या वो फिनोमेना आपके पास हीट इंजन का फिनोमेना कहलाएगा, ठीक है। हीट इंजन के बाद हम
एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन को डिस्कस करते हैं, जो बेसिकली इसी का फिनोमेना कहलाएगा. The ratio of the work is obtained in a cyclic process means that the heat is taken from the high temperature reservoir is referred to as the efficiency of heat. वो सिस्टम क्या कहलाएगा? एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन का सिस्टम कहलाएगा. यानी एफिशिएंसी ऑफ मशीन इज ऑलवेज लेस देन द यूनिटी. कार्नोट साइकिल, इन्हीं रिलेशनशिप से यानी हीट इंजन से, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन से आप डिस्कवर करते हैं कार्नोट साइकिल. कार्नोट साइकिल बेसिकली क्या कहलाती है? कार्नोट साइकिल आर बेसिकली डिपेंड करी होती है हाइपोथेटिकल केसेस पे और साइक्लिक प्रोसेस पे. इन दोनों के मिलने से यानी दोनों के कॉम्बिनेशन से आपके पास मिलता है कार्नोट साइकिल का प्रोसेस. The efficiency of machine is less than the unity. So it means that consider a hypothetical engine which is convert heat into the work by a cyclic process is called a Carnot cycle. Carnot cycle basically क्या है? Basically एक हम hypothetical case लेते हैं, यानी suppose which can convert heat into the work by a cyclic process. And the cyclic process basically क्या है कि जो दोबारा अपनी initial state को हासिल कर ले, वो आपके पास cyclic state कहलाती है. तो hypothetical case और cyclic process मिलके क्या बना रहे हैं? Carnot cycle बना रहे हैं. ठीक है. The cyclic process which occurred under reversible condition is referred to as a Carnot cycle. The Carnot cycle comprise 4 step और process. हम Carnot cycle को हम categorize कर रहे हैं 4 steps में, यानी 4 processes में. First one is isothermal reversible expansion. Second is adiabatic reversible expansion. Third one is isothermal reversible compression, and the fourth one is adiabatic reversible compression. According to the diagram which is represented by the Carnot cycle representation, आपके पास प्रेशर क्या है? Consecutively P1 V1, P2 V2, P3 V3, P4 V4 with the relationship according to the volume and the pressure is decreased, which means that the volume is increased. ये आपके पास रिलेशन बन रहा है, यानी रिटर्न इनटू द प्रोसेस. कंटिन्यूसली प्रोसेस चल रहा है, एक साइक्लिक सिस्टम क्रिएट हुआ है. ठीक है. यही साइक्लिक सिस्टम आपके पास क्या जनरेट कर रहा है? फिनोमेना जनरेट कर रहा है अकॉर्डिंग टू द आइसोथर्मल एंड द एडियाबेटिक प्रोसेस का, यानी एक रिवर्सिबल कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? रिवर्स हो रहा है सिस्टम के अंदर. ठीक है. फर्स्ट वन को डिस्कस करेंगे. स्टेप 1 इज द आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन. P is equal to P1, V is equal to V1 and T is equal to T1 according to that kind of reaction. ठीक है. ये सारे आपके पास P1, T1 and V1 के रिएक्शन है जो हमने कैटेगराइज किया है P1, V1 and T1 से, यानी हम सॉल्व कर रहे हैं इस रिएक्शन को, A1 प्रॉपर्टी को. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस W. आइसोथर्मल हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा E इज इक्वल टू 0. ड्राइव करेंगे इक्वेशन को, डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस W. सो द डेल्टा E इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे बताया कि इज इक्वल टू 0 के बराबर है, तो ये आपके पास Q माइनस W हो जाएगा. Q इज इक्वल टू के बाहर लाएंगे तो इज इक्वल टू W, तो Q इज इक्वल टू W1 से कैटेगराइज किया. देयरफॉर द W1 इज इक्वल टू nRT टू ln V2 ओवर V1 के बराबर है. ठीक है. ये आपके पास इक्वेशन बनी अकॉर्डिंग टू आइसोथर्मल इक्वेशन. Step 2 is a adiabatic reversible expansion. Work done since the step is adiabatic, जिसमें आपके पास Q की वैल्यू क्या है? इक्वल टू 0. यहाँ पे आपके पास डेल्टा E की वैल्यू 0 थी, यहाँ पे आपके पास Q की वैल्यू इक्वल टू 0. If W2 be the work done according to the first law of equation, delta E is equal to Q minus W, जिसमें हम कंप्राइज कर रहे हैं P2 कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? P3 में जा रहा है. V2 V3 में चेंज हो रहा है. ठीक है. V1 से V2, V3 एंड V4 इस तरीके से साइक्लिक सिस्टम चल रहा है. ठीक है. इन एडियाबेटिक Q is equal to 0, so the relationship according to the first law of thermodynamics, delta is equal to Q minus W, so it means the delta E is equal to minus W, but delta E is equal to minus W2, so the relationship according to minus W2 is equal to NCVDT. ये हमने relationship डिस्कस किया था according to the adiabatic reversible expansion में. ठीक है. CVDT के बराबर है. W2 is equal to minus NCV. ठीक है. NDT of reactions. Step 3 is isothermal reversible compression. Isothermal reversible compression क्या categorize कर रहा है? Since the processes take place isothermally, delta E is equal to 0 according to first law of thermodynamics equation. Delta E is equal to Q minus W के बराबर है. So it means that the P3 P4 में change हो रहा है and V3 V4 में change हो रहा है. So it means the temperature भी change होगा T1 में. तो डेल्टा E is equal to Q minus W, so Q is equal to minus W3. वर्क डन हम हर जगह चेंज करें. एक जगह हमने W1, यहाँ पे हमने W2 और यहाँ कैटेगराइज करें हम W3 से. ठीक है. स्टेप 3 है तो हम इसको W3 से कैटेगराइज कर रहे हैं वर्क डन से.
So the isothermal reaction is W3 is equal to minus nRT1, टेम्परेचर आपके पास T1 है, ln V4 over V3, वॉल्यूम आपके पास चेंज हो रहा है. Comparatively, step 4 is adiabatic reversible compression is W4, यानी आपके पास वर्क डन क्या है 4 दिया NCV dt. ठीक है. अब नेट वर्क डन ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, नेट वर्क डन आपके पास क्या बन रहा है कि हम यहाँ पे नेट वर्क डन यानी W1 जितने भी वर्क डन कैटेगराइज किए थे उनको सम करेंगे, क्योंकि नेट रिएक्शन क्रिएट कर रहे हैं, सबको सम ऑफ करेंगे एंड वैल्यूज को पुट करेंगे. अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, put the values for all the equation according to isothermal reversible compression, reversible expansion of reaction. हम तमाम की वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे. यहाँ W1 की वैल्यू पुट की, यहाँ W2 की, ये W3 की और ये आपके पास W4 की वैल्यू. इन वैल्यूज को आपने पुट करना है. प्लस माइनस माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस का साइन आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पे आपके पास प्लस का साइन है. सेम वैल्यूज ऑफ रिएक्शंस आपके पास आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा. रिमेनिंग रिएक्शन W इज इक्वल टू nRT2 ln V2 over V1 माइनस nRT1 ln V4 over V3. ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? इक्वेशन नंबर 6 बन जाएगी. अब इसी इक्वेशन नंबर 6 से हमने क्या कैटेगराइज करना है? इक्वेशन नंबर 6 से हम बताएंगे कि T2 over T1. अब आपके पास हमने बताना है कि T2, यहाँ आपके पास क्या दिया है T2 over T1. ठीक है. T2 over T1 is equal to V1 over V2, R minus 1 is equal to V3 over V4 is equal to R minus 1. यहाँ पे आपके पास क्या है कि एक वर्क परफॉर्म हो रहा है सिस्टम के अंदर. क्या परफॉर्म किया जा रहा है? वर्क परफॉर्म कर रहे हैं सिस्टम के अंदर, और आपके पास पावर क्या बन गई है? R minus 1, यानी पावर इक्वल. सो द बेसिस आर इक्वल, पावर इक्वल है, सो बेसिस भी आपके पास क्या हो जाएंगी? इसकी इक्वल हो जाएंगी. बेसिस के इक्वल होने से क्या होगा कि हमने यहाँ पे क्या किया? T1 over T2, V2 over V1, R minus 1, ये चेंज करेंगे, यानी V1 ओवर जो V2 था उसको हमने चेंज कर दिया V2 ओवर V1 से. ठीक है. यहाँ पे V3 ओवर V4 था. हमने यहाँ पे क्या कहा? यहाँ पे हमने ये कहा कि पावर इक्वल है, सो बेसिस आर इक्वल. इनकी पावर इक्वल थी तो हमने बेसिस को इक्वल कर दिया. ठीक है. अब यहाँ पे आपके पास क्या था? V3 ओवर V4 था, तो यहाँ पे V4 ओवर V3 कर दिया और R minus 1. इसको हमने रिवर्स कर दिया. रिवर्स करने के बाद आपके पास क्या आएगा? V2 over V1 R minus 1 is equal to V4 over V3 is equal to R minus 1. ये रिएक्शंस थे, वॉल्यूम को कैटेगराइज कर रहे थे अकॉर्डिंग टू ऑल काइंड ऑफ रिएक्शन. ठीक है. अब यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यूज निकल कर आएंगी? V2 over V1 is equal to V4 over V3. ओवरऑल हम क्या कहते आ रहे हैं? यहाँ से हमने इसको कॉमन लेना है, तमाम वैल्यूज को हमने कॉमन ले लिया था तमाम वैल्यूज में. ठीक है. T1 over T2 को यहाँ से कॉमन लिया, V2 over V1 R minus 1, यहाँ पे भी R minus 1, और यहाँ पे हमने किस तरीके से कैटेगराइज कर रहा है कि पावर इक्वल है, सो हम बेसिस को भी क्या कर लेंगे? इक्वल कर लेंगे. पावर इक्वल थी तो बेसिस को भी हमने इक्वल कैटेगराइज किया. इज इक्वल टू आपके पास क्या बन गई? ये 0 बन गई. पुट द वैल्यूज. अब यहाँ पे आपके पास क्या निकल कर आई? V2 over V1 इज इक्वल टू V4 over V3. वैल्यूज को क्या करना है? पुट करना है. V4 over V3 की जो वैल्यूज थी उसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 6 के अंदर. ठीक है. इसके अंदर इक्वेशन नंबर 6 के अंदर. अब यहाँ तक जो हमने इक्वेशन नंबर 6 को सॉल्व किया था वो हमने यहाँ से इसको कैटेगराइज किया T2 over T1 से. अब W इज इक्वल टू nRT2 ln V2 over V1. अब आपके पास वही सेम इक्वेशन है, आपने वैल्यू को पुट करना है. V4 over V3 की जगह V2 over V1 की वैल्यू पुट करनी है. ठीक है. ये आपके पास एक स्टेट फंक्शन ऑफ रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन का. ठीक है. टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली. अब यहाँ पे आपके पास इक्वेशन नंबर 7 क्या बनेगी? अकॉर्डिंग टू वैल्यूज पुट करने के बाद, यहाँ पे जब आप वैल्यूज को पुट कर देंगे तो वैल्यूज पुट करने के बाद इक्वेशन नंबर यहाँ से कॉमन बाहर निकालेंगे. V2 over V1 T2 minus T1 का रिएक्शन बनेगा. ठीक है. इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फर्दर तो इक्वेशन नंबर 7 बनेगी, डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 7 बाय इक्वेशन नंबर 1. अब इक्वेशन नंबर 7 को, जो आपके पास इक्वेशन नंबर 7 लास्ट निकल कर आई है, उसको इक्वेशन नंबर 1 जो सबसे पहले सॉल्व की थी उस इक्वेशन से क्या करना है? आपने डिवाइड कर देना है. तो आपके पास ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगा? W over Q is equal to T2 minus T1 over T2. ठीक है. सेम रिएक्शंस आपके पास आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो T2 minus T1 बनेगा. The factor is W over Q2 is called the thermodynamical efficiency. यानी W over Q या W over Q2 यानी आपके पास सेकेंड हीट ऑफ रिएक्शंस है, वो आपके पास थर्मोडायनेमिकल एफिशिएंसी कहलाएगा. एफिशिएंसी को हमने इससे रिप्रेजेंट किया है. सो द एफिशिएंसी आपके पास क्या बना रही है? एफिशिएंसी का मतलब होता है कि W बेसिकली एफिशिएंसी आपके पास क्या बता रही है कि efficiency is given or taken is ideal condition, so it means that it is the hypothetical functions. So मैं इसको रिलेट कर रही हूँ W over Q2 से, Q2 से या Q से.
ये आपके पास रिलेशन हुआ अकॉर्डिंग टू द एफिशिएंसी का। कार्नोट थ्योरम को इसी से रिप्रेजेंट करूंगी। जब मैं एफिशिएंसी को फाइंड आउट करूंगी W/Q से, तो आपके पास स्टार्ट होता है कार्नोट थ्योरम। कार्नोट थ्योरम बताता है कि W/Q इज इक्वल टू T2 माइनस T2 minus T1 over T2. This result is deduced from the perfect gas for the depends upon the temperature limits between, which is the cyclic operates. It is independent for all the other factors. This Carnot state is important relationship according to the Carnot theorem. ठीक है, ये बता रहा है बेसिकली एवरी परफेक्ट इंजन जो वर्क कर रहा है रिवर्सिबली बिटवीन द सेम टेम्परेचर्स ऑफ द लिमिट्स एंड द सेम एफिशिएंसी, किस पे डिपेंड कर रहा है, सेम टेम्परेचर्स पे एंड द सेम एफिशिएंसी whatever the working is substances. ठीक, अब फर्दर जब मैं इसको रिलेशनशिप को मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगी, जो हमारे पास लास्ट इक्वेशन क्रिएट हुई थी उसी रिलेशनशिप से सॉल्व करूंगी, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 ओवर T2, यानी एफिशिएंसी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय T2। एफिशिएंसी को कैटेगराइज करेंगे, यहाँ पे आपके पास इसको सॉल्व करना है, तो E इज इक्वल टू T2 ओवर T1 माइनस T1 ओवर T2, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T1 ओवर T2। तो एफिशिएंसी को फर्दर सॉल्व करूंगी, टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली हीट से रिप्रेजेंट करूंगी, तो Q1 ओवर Q2 से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। सो द रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू, आपके पास एक मरतबा हमने इसको टेम्परेचर से रिलेट किया, सेकंड हमने इसको हीट से रिलेट किया, यानी एफिशिएंसी इज नॉट इक्वल टू 1। एफिशिएंसी कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकती, बल्कि इसमें से इतना फ्रैक्शन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जो एफिशिएंसी इस इंजन की आ जाए। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एफिशिएंसी इज नॉट इक्वल टू 1, बल्कि इसमें से इतना फैक्टर को हम सब्ट्रैक्ट किया जाएगा कि एफिशिएंसी क्या आ जाए, इस इंजन की आ जाए। तो एफिशिएंसी इज लेस देन 1, so the relationship according to, even we are taking about the ideal conditions of hypothetical function, according to the relationship efficiency is always less than 1। तो यहाँ पे हमने पूरा डिस्कस किया ओवरऑल द कार्नोट साइकिल एंड द कार्नोट थ्योरम को। ठीक, अब सॉल्व प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्व प्रॉब्लम आपके पास क्या है, अकॉर्डिंग टू हमने एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन से ही इसको रिलेट किया है। एन इंजन इज ऑपरेटिंग बिटवीन द 150 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस, takes 500 joules heat from the high temperature reservoirs, assuming that there are no frictional losses. Calculate the work done, यानी work done हम कैलकुलेट करेंगे, दैट कैन बी डन बाय दिस इंजन। सो क्या स्ट्रैटेजी हम फॉलो करेंगे, दो टेम्परेचर्स आपके पास दिए में है, विच इज चेंज इनटू द केल्विन स्टेट अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। एफिशिएंसी इज इक्वल टू W/Q इज इक्वल टू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T2। हम वैल्यूज पुट करेंगे, वर्क डन की वैल्यू आपके पास गिवन है, हीट की वैल्यू आपने पुट करनी है, केल्विन में आपके पास वैल्यूज दी होंगी, उसको पुट करेंगे तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, वर्क डन की वैल्यू निकल कर आएगा। ठीक, अब सेकंड प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। सेकंड प्रॉब्लम है, इफ अ कार्नोट इंजन इज ऑपरेटिंग बिटवीन two heat reservoirs is 227 degrees Celsius and 27 degrees Celsius, is absorbs 1000 calories from the 227 degrees Celsius reservoirs per cycle। किस पे डिपेंड करिए, इस टेम्परेचर पे डिपेंड करिए। How much heat is discharged into the 227 degree Celsius reservoirs, जो जब इस पे डिपेंड करेगी तो how much work is done by the cycle, कितना वर्क प्रोड्यूस होगा प्रोसेस ऑफ साइक्लिंग सिस्टम में। What is the efficiency of the cycling? अब दो आपसे टेक्निक्स पूछी है यहाँ पे। फर्स्ट वन इज द वर्क डन, क्या वर्क डन प्रोड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाएंगे, W इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय Q, T2 माइनस T1 डिवाइड बाय T2। क्या फाइंड आउट करेंगे, वर्क डन पहले फाइंड आउट करेंगे, तो वर्क डन इज इक्वल टू, यहाँ पे Q डिवाइड हो जाता है, यहाँ पे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे वर्क डन का, तो आपके पास वर्क डन कितना निकल जाएगा, 400 कैलोरीज। The work done per cyclic process according to 400 calories। ये आपके पास फर्स्ट रिलेशनशिप क्रिएट हुआ। अब सेकेंड आपके पास क्या सिस्टम है, द हीट फ्रॉम द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर माइनस फ्रॉम द हीट डिस्चार्ज इनटू द लो टेम्परेचर रिजर्वायर्स, यानी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर सिस्टम में जा रहा है, तो वर्क डन आपके पास क्या जनरेट होगा, हमने वर्क ऑलरेडी प्रोड्यूस कर लिया था, वर्क आपके पास इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे, Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू W। क्या कितना टेम्परेचर दिया हुआ था आपके पास, 1000 कैलोरीज में दिया हुआ था अकॉर्डिंग टू द सिस्टम में, जो 1000 कैलोरीज आप यहाँ पे लिखेंगे, माइनस Q1 इज इक्वल टू 400, तो Q1 की वैल्यूज कितनी होगी, 600 कैलोरीज। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट हमें एफिशिएंसी, what is the efficiency of the cyclic process according to the relationship of work done and according to the relationship of high temperature reservoirs to the low temperature reservoirs। ठीक है, तो सो द एफिशिएंसी क्या होगी,
W over Q is equal to T2 minus T1 over T2. तो आपने वैल्यूज पुट करनी है सारी इसकी. T2 minus T1 की वैल्यूज पुट करेंगे, दोनों रिलेशनशिप की वैल्यूज पुट करेंगे. So the reaction is 0.4. Therefore the efficiency of the engine is 0.4. ठीक, यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आएगा? 0.4 is the efficiency of heat engine. Thank you.